Hello everyone, I am Dipanshi from BSc Chemistry Honors final year. I am here to discuss the topic energy production in living organism. Respiration, the stepwise oxidation of complex organic molecules and the release of energy as ATP for various cellular activities is called respiration. External respiration or breathing in case of animals, a physical process which involves the exchange of gases between the organism and external environment is called external respiration. Now, respiration in plant, the physical process which involves the exchange of gases through stomatal pores on the surface of leaf and external environment is called respiration in plants, or you can say external respiration. Now, what is cellular respiration? The biochemical process which occurs within cell and oxidizes food to obtain energy. हमारा सबका मोटिव होता है कि हम खाना किस लिए खाते हैं, ताकि हमें क्या मिले, एनर्जी मिले, किसके लिए, सर्वाइवल के लिए. तो वो एनर्जी हम कहीं से भी ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट से, फैट से, लिपिड से, और is known as cellular respiration. The process in which energy is released by the breakdown of carbohydrate molecules like glucose and other food molecules, और ये सब किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. अब वेरियस एंजाइम्स इस चीज़ में हेल्प करते हैं, और यू कैन से बायोकैटलिस्ट. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, जो हमारी फूड की एनर्जी है वो एट लास्ट किस में कन्वर्ट होती है, एटीपी में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में. एटीपी क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको, सेल्स को, विच दे नीड. अब हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं, एक कैटाबॉलिक एक एनाबॉलिक. इन प्रोसेसेस के लिए क्या चाहिए, एनर्जी. किस फॉर्म में, सेल को एटीपी की फॉर्म में. द प्लांट्स ऑब्टेन वाटर वेपर फ्रॉम अर्थ एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट एंड फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट एंड रिटर्न ऑक्सीजन थ्रू photosynthesis. Cellular respiration. It is the process of converting food energy into ATP energy. ATP provide energy to cell which they need to carry out the activities of life. अब जिस सेल्स ऑब्टेन करते हैं एनर्जी से, कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल which depend on whether or not oxygen is present in the environment or utilized. Whether oxygen is present or not, or it can utilize oxygen or not. Respiration is termed or aerobic when oxygen is present and anaerobic when oxygen is not present. Aerobic respiration आपको पता है जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो. द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. इट लीड्स टू ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट. सबसे ज़्यादा हायर ऑर्गेनिज्म में ये कॉमन होती है, जैसे कि हमने ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिया, ऑक्सीजन डाली, और वो ब्रेक डाउन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, और एटीपी एनर्जी तो हमें मिलेगी ही. एनारोबिक क्या होती हैं, जो कम्प्लीटली अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस, कम्प्लीटली ऑक्सीजन की अब्सेंस में हो, वो होती हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन. इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा कंपाउंड का या किसी भी मॉलिक्यूल का. लोअर ऑर्गेनिजम्स में होती है, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई. हायर एनिमल्स अंडर लिमिटिंग कंडीशंस, जब जैसे हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, जब हम ज़्यादा भाग लेते हैं, जब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं. C6H12O6 ग्लूकोज किस में टूटता है, लैक्टिक एसिड में, और एटीपी मॉलिक्यूल ये कहाँ पे होता है, मसल्स में होता है, और ये प्रोसेस कहाँ चल रही होती है, साइटोप्लाज्म में. मैनी कॉमन प्रोसेसेस अकर इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक respiration. Oxidation reaction to release chemical energy from complex food. Use of coenzyme as carriers of hydrogen to remove the hydrogen from organic molecule, leading to the reduction of the coenzyme and oxidation of substrate. Most of the hydrogen carrier are NAD and FAD. These are later reoxidized, releasing energy from ATP synthesis. Now, energy production in living organisms. All living organisms require energy for survival. Energy production in living organism. All living organisms require energy for different daily activities. हम सभी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है डेली एक्टिविटीज़ के लिए. ब्रीदिंग, वॉकिंग, रनिंग, मतलब कोई भी काम कर रहे हैं तो एनर्जी तो चाहिए होती है. ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है. फूड की ब्रोकन डाउन होने से ही मिलती है. फूड कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, फैट्स भी हो सकते हैं. फ्रॉम वेयर वी गेट एनर्जी फॉर डिफरेंट डेली एक्टिविटीज़. वी गेट एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड
अब ग्रीन प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, उसी से हमारा फूड बनता है। ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द photosynthesis and store light energy in the bonds of complex organic molecules. ग्लूकोज बनता है C6H12O6 फोटोसिंथेसिस के दौरान, जो कि एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। In different organism, there occur a slow stepwise oxidation of carbon-carbon bond of complex organism respiratory substrate molecule like carbohydrate, fats, proteins through cellular respiration in presence of different enzymes and coenzymes. अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होती है, ब्रेक डाउन होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड का, एंड फाइनली द एनर्जी जो रिलीज होती है वो किस में स्टोर्ड होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। किस फॉर्म में? एटीपी। एटीपी ही एनर्जी करेंसी ऑफ सेल होती है। सेल को तो एटीपी की ही फॉर्म में एनर्जी चाहिए, तो एट द लास्ट वी नीड एटीपी, जो फर्दर यूटिलाइज होती है डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। जो टूटने वाली रिएक्शंस होती हैं, ब्रोकन डाउन वाले, तो वो कैटाबॉलिक, और जो बनना होता है वो होती हैं एनाबॉलिक। सो एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। फेवरेट सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन इज, एज वी ऑल नो, इट इज़ ग्लूकोज। All the carbohydrates are initially converted into glucose before their involvement in respiration or any other process. ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन होता है? CO2, H2 और एनर्जी ATP निकलती है। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है। ग्लाइकोलाइसिस में किस में? पायूरीट 3 कार्बन कंपाउंड में लास्ट में बचता है। फर्स्ट प्रोसेस हमारी ग्लाइकोलाइसिस है, जो कि कहाँ चलती है? साइटोप्लाज्म के अंदर चलती है। उसको हम EMP पाथवे भी कहते हैं। साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है इसका नाम EMP पाथवे। सेकेंड प्रोसेस हमारी होती है क्रैब साइकिल, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन और ट्राई कार्बोक्सिक एसिड भी साइकिल भी कहते हैं इसको। और थर्ड हमारी होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड केमियोस्मोसिस। अब जो फैट्स हैं वो किस में ब्रोकन डाउन होते हैं? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड्स फर्दर किस में चला जाता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ग्लिसरॉल फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड में चला जाता है। तो ये प्रोसेसेस चलती रहती हैं। प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट होता है? अमीनो एसिड में। किसकी हेल्प से? एंजाइम प्रोटीएज की हेल्प से। अमीनो एसिड किस में फर्दर डिग्रेड हो जाते हैं? पायूरिक एसिड में हो या फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए में। Similarly, glycerol can be synthesized from PGL or withdrawing it from respiratory pathway. Similarly, amino acid can form pyric acid etc. by withdrawing it from respiratory pathway. Respiratory pathway involved both in catabolism and anabolism. एक रेस्पिरेटरी पाथ में दोनों प्रोसेसेस को फॉलो करता है, एनाबॉलिक भी कैटाबॉलिक भी, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? एम्फीबॉलिक पाथवे। ऑलवेज रिमेंबर डैट जो ग्लाइकोलिसिस है वो हमेशा एनारोबिक रहती है, जिसमें O2 अवेलेबल ना हो तभी ग्लाइकोलिसिस होती है। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस हमेशा एनारोबिक होती है जब भी परफॉर्म करी जाती है, जब O2 अवेलेबल ना हो। पहला हमारा फेवरेट सबस्ट्रेट क्या है? ग्लूकोज, जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है। इस प्रोसेस में 2 NADH बनते हैं और 2 ATP। एक NADH में 3 तो 2 में 6 और 2 ATP, टोटल 8 ATP हमें इस प्रोसेस से मिलती है। फेट ऑफ पायूरिक एसिड, साइटोप्लाज्म टू माइटोकॉन्ड्रिया 2 ATP यूज्ड इन यूकैरियोट्स। ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो फर्मेंटेशन हो जाती है, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अगर O2 प्रेजेंट है तो CO2 NADH एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 कार्बन कंपाउंड बन जाता है। उसके बाद सिट्रिक एसिड 6 कार्बन कंपाउंड और फर्दर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ग्लाइकोलाइसिस ऑल्सो नोन एज, मैंने पहले भी बताया, EMP पाथवे, एम्डन मेयरहोफ एंड पार्नर पाथवे। ये ऑलवेज एनारोबिक होता है। O2 इज़ अवेलेबल इन द सेल और नॉट, इस बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 प्रोसेसेस होती हैं और लेकिन ग्लाइकोलाइसिस एक 10 स्टेप प्रोसेस है। पास्चर इफेक्ट, द इफेक्ट इन विच इनहिबिशन ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ O2। मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन ही हो रही है, उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? पास्चर इफेक्ट। इन मसल्स जब ऑक्सीजन सफिशेंट है तो वही होता है नॉर्मल 6 CO2 + H2। इन मसल्स व्हेन O2 प्रेजेंट इज अनसफिशिएंट तो रिएक्शन क्या हो जाती है? लैक्टिक एसिड बन जाता है और ATP बन जाती है मसल्स के अंदर। अब हम देखते हैं स्टेप वाइज ग्लाइकोलाइसिस।
ग्लूकोज फर्स्ट 6 कार्बन कंपाउंड कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, एटीपी यूज़ होगी 1 और एंजाइम होगा यहाँ पे ग्लूकोकाइनेज या फिर हेक्सोकाइनेज। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में फॉस्फोग्लाइकोज आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में, यहाँ पर भी एक एटीपी यूटिलाइज होगी फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज और Mg2 पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में। फर्दर फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू 2 DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे, 3 कार्बन कंपाउंड 2 मोल्स होंगे। अब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्टेड होगा 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ पे 2 NADH बनेंगे और एंजाइम होगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इनटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट, एंजाइम होगा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज और Mg पॉजिटिव 2 आयन। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज इज कन्वर्टेड इनटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट इनोलेट, किस एंजाइम की प्रेजेंस में, फोस्फोइनोलेट। नाउ द H2 रिलीज होगा इस स्टेप में, 2 फॉस्फोग्लिसरेट इनोलेट इज कन्वर्टेड इनटू फोस्फोइनोल पायूरेट and phosphoenolate pyruvate is converted into pyruvate 3 carbon compound in the presence of enzyme pyruvate kinase Mg2 positive. Here 2 ATP are formed. So net ATP 4 ATP are formed and 2 ATP are utilized. So net ATP 2 ATP and 2 NADH. 1 NADH is equal to 3. So 6 plus 2 8 ATP are formed here. Now next cycle is Krebs cycle, occurs in the matrix of mitochondria. We can also say tricarboxylic acid cycle. 2 pyruvate 3 carbon compound is converted into acetyl coenzyme. Here 2 NADH are formed. Pyruvate dehydrogenase enzyme की presence में एसिटाइल कोएंजाइम देन सिट्रेट सिंथेज की प्रेजेंस में कन्वर्टेड होगा सिट्रेट में, सिट्रेट फर्दर कन्वर्टेड होगा सिस एकोनिटेट में, एकोनिटीज एंजाइम की प्रेजेंस में, सिस एकोनिटेट कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रेट में, एकोनिटीज एंजाइम की प्रेजेंस में, आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होगा ऑक्जेलोसक्सिनेट में और एक्जेलोसक्सिनेट कन्वर्ट होगा अल्फा कीटोग्लूट्रेट में, कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। अल्फा कीटोग्लूट्रेट कन्वर्ट होगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होगा सक्सीनेट में, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में, सक्सीनेट कन्वर्ट होगा फ्यूमरेट में, सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज, सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में फ्यूमरेट बना, फ्यूमरेट से मालेट बना, फ्यूमरेज की प्रेजेंस में मालेट से ऑक्जेलो एसीटेट बना, मालेट डिहाइड्रोजनेज से। इस पूरी साइकिल को हम बोलते हैं Krebs cycle. The Krebs cycle produces CO2 that we breathe out और ATP तो एनर्जी तो बनती ही है। Oxidative phosphorylation. It is the process in which ATP is formed as a result of transfer of electron from NADH or FADH2 to produce by a series of electron carriers. ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मैट्रिक्स में होता है। ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन 2 स्टेप्स इन्वॉल्व करता है। पहली है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, द मेटाबॉलिक पाथवे प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू विच इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH FADH2 passes from one protein complex carrier to another protein complex carrier in a series of redox reaction. Reduction and oxidation are occurring simultaneously and there are 5 complexes and oxygen sites at the end of electron transport chain and accept electron and pick up the proton to form H2O. Ubiquinone oxidoreductase FES complex, इसमें लास्ट में QH2 बनता है। पहले FES से इसमें 2 FES के कॉम्प्लेक्स होते हैं और एक FN का होता है। 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं जो एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन, तो QH2 बन जाता है। QH2 फिर फर्दर किसमें, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, फिर साइटोक्रोम C रिडक्टेज, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज और टर्मिनल ऑक्सीडेज एंड देन साइटोक्रोम A and A3. Now next process is
chemiosmosis, the process in which energy released during electron transport chain reaction is captured as a proton gradient and then used to make ATP. In absence of O2, during vigorous exercise or when a person is not breathing enough oxygen, there is no one to accept electron and thus electron transport chain will stop working. So no ATP will produce. When ATP is not produced, and cells cannot perform its function, so it will may die. Without enough ATP, no metabolic process are formed and after a long period of time cell die हो जाएगा. Now the steps during oxidative phosphorylation. First is delivery of electrons by NADH and FADH2. NADH and FADH2 are electron carriers, reduced electron carriers from other steps of cellular respiration transfer their electrons to molecules near the beginning of transport chain. In this process, they turn back to NAD positive and FAD positive, which can be reused in the further steps of cellular respiration. Electron transfer and proton pumping. As electrons pass down the electron chain, they move from higher energy level to lower energy level, releasing energy. Some of the energy is used to pump H positive ion, moving them out of matrix and inner membrane space. This pumping established an electrochemical gradient. Third, splitting of oxygen to form H2O. At the end of electron transport chain, electrons are transformed to molecular O2, which splits in half, takes up H positive to form H2O. Now the last step of oxidative phosphorylation, gradient driven synthesis of ATP. As H positive flow down the gradient and back into the matrix, they pass through an enzyme called ATP synthase, which harnesses the flow of protons to synthesize ATP.